Okay, sir. Good morning, my dear students. Come fast. Today we are going to finalize the remaining part of the Shivsa story. रिमेनिंग पार्ट आज हम करेंगे और अब जो पार्ट बनने वाला है इस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है. ठीक है, 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है, 8 नंबर का भी आ सकता है, रॉन्ग आंसर भी आ सकता है. तो इस पार्ट को अच्छी तरीके से समझिए. Anil was not paying regular salary to the thief Hari Singh, and the only way Hari Singh could earn some money was by, robbing 1 rupee on daily basis from those grocery stuffs, purchasing of the grocery stuffs. So for a very long period of time, Hari Singh is planning to rob Anil, and the day has come when this Anil has come with a bundle of notes. He has sold a book, and in return he has got some money. And Hari Singh saw that bundle of note. Now the sense of greed, emanates in his mind, and finally he decides that the day has come to execute his plan, take the money and get away from the house unnoticed. So the plan was all set. Now he is going to commit robbery, he is going to commit theft. How does he do? We are going to look into that. So Anil was asleep. It was night time. Anil was sleeping. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. It was a shiny moonlight. Okay. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. So, on this particular day, Anil was sleeping, and the day of execution of the plan has come. Slowly, actually the money was stuck under the mattress, right under his head. So, and Hari Singh the thief was also sleeping in the same room on the floor. So he had not slept. वो नहीं सोया हुआ था. So he finally decides to take the bundle of the note from the house, from the room. So Anil was approached slowly by the thief. The thief went to Anil's bed and tried to take out the bundle of notes. My hands slid under the mattress searching for notes. When I found them, I threw them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. So finally, Hari Singh places his arm under the mattress and tries to take the bundle of the note and slowly move out of the room, unnoticed. बगैर नोटिस हुए वो चाहता है कि वो कमरे से बाहर चले जाओ. ऐसा ही कुछ वो करता है. मैट्रेस के अंदर जो बेड के नीचे जो बंडल रखा हुआ था नोट्स का, वहां तक अपने हाथ ले जाता है और उस बंडल को निकाल के चुपके से अननोटिस्ड वो निकलने की कोशिश करता है और वो निकल भी जाता है कमरे से. सो फाइनली ही हैज रॉब्ड ऑफ अनिल. फाइनली उसने अनिल को रॉब कर लिया है. नाउ ही गोज आउट. अब ये बाहर जाता है. When I was on the road, I began to run. Why was he running? He was running because he had to catch a train, and he did not want Anil to call the police, to inform the police that he was robbed. So he did not want to be caught. So when I was on the road, I began to run,
I had the notes at my waist, held there by the strings of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes 600 rupees in 50s. So I'm underline कर लेना. I could have I could live like an oil rich Arab for a week or two. Finally, वो bundles of notes लेके और अपने पैजामा के स्ट्रिंग से, अपने पैजामा के धागे वो स्ट्रिंग से उसे बांध लेता है, उसे फिक्स कर लेता है स्ट्रिंग पे, और वो जब काउंट करता है नोट को तो उसे पता चलता है कि टोटल मनी जो थे 600 रुपीज है और 50 के डिनोमिनेशन में थे. 50 के 50 रुपए के नोट में 600 रुपए थे टोटल. तो कितने हो जाएंगे? 12 नोट्स हो जाएंगे. 12 नोट्स थे 50 रुपीज के. अब ये इमेजिन करता है कि इस 600 रुपए से तो मैं एक अरब की तरह, अरब में बहुत ज्यादा तेल होता है ना, तो वहां जो शेख्स होते हैं वो बहुत रिच होते हैं, बहुत धनी होते हैं. अपने आप को इमेजिन करता है कि मैं इस 600 रुपए से एक अरबी की तरह, एक अरब इंसान की तरह मैं बहुत ही रिच लाइफ जीऊंगा, एक लेविश लाइफ जीऊंगा कई हफ्तों तक, एक वीक और टू, 1-2 हफ्तों तक तो मैं 600 रुपए में एक रईस की जिंदगी जी सकता हूँ. So when I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had not bought a ticket in my life. जब ये स्टेशन पहुंचता है तो टिकट काउंटर पे ये नहीं रुकता है टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि इसकी फितरत नहीं होती है टिकट खरीदने की. ये कहता है कि थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव नेवर बॉट अ टिकट. मैंने कभी टिकट खरीदी ही नहीं अपने. मैं ऐसे ही बस किसी ट्रेन के किसी कंपार्टमेंट में बैठ जाता था और एक शहर से दूसरे शहर चला जाता था. तो ये स्टेशन पे स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और ये सीधे स्ट्रेट अवे प्लेटफॉर्म पे चला जाता है. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. इसकी आंखों के सामने लखनऊ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रही थी, यानी कि ट्रेन खुल चुकी थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. Now here's something amazing, something different. The purpose of reaching the platform, the purpose of going to the railway station was to leave the city. वो शहर से भाग जाना चाहता था. जिस ट्रेन को वो पकड़ना चाहता था वो ट्रेन भी इसकी आंखों के सामने खुल रही थी. अभी इस ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ा था, ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ ही रही थी, तो ये आसानी से ट्रेन के किसी भी डब्बे में जाकर के बैठ सकता था. बट ही हेजिटेटेड. इसे कुछ फीलिंग होती है. क्या फीलिंग होती है आगे आपको पता चलेगा. इसे कुछ डिफरेंट फीलिंग होती है. इसका माइंड शिफ्ट हो जाता है, इसका माइंड चेंज हो जाता है, और ये उस चलते हुए ट्रेन में बैठ नहीं सका. और कहता है आई कैन नॉट एक्सप्लेन वाई आई कुड नॉट बोर्ड इनटू द ट्रेन. मैं ट्रेन में क्यों नहीं बैठ सका, मैं खुद इसकी वजह नहीं जानता था. जबकि मेरे सामने ट्रेन खुल रही थी, मैं आसानी से ट्रेन में बैठ सकता था और शहर छोड़ के भाग सकता था, और मुझे फिर कोई पकड़ता नहीं. तो मेरा पर्पस इजिली अचीव हो रहा था. मैंने जो प्लान बनाया था अनिल को रॉब करने का, वो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया. अननोटिस्ड मैं शहर छोड़ के भागना चाहता था, वो भी हो रहा है. मेरे सामने ट्रेन खुल रही है, बट मैं बैठ नहीं पा रहा हूं ट्रेन में. ऐसा क्यों? सडन चेंज इन हिज थॉट. उसके सोच में अचानक से बदलाव आ जाती है. क्या आती है सो देखते हैं. When the train had gone, I found myself standing on the deserted platform. Deserted means lonely platform. रात का वक्त था, प्लेटफॉर्म पे ना के बराबर लोग थे. आपने पढ़ा ना, few people थे, ना के बराबर लोग थे प्लेटफॉर्म पे. सो ट्रेन चली, लखनऊ एक्सप्रेस वे प्लेटफॉर्म छोड़ के चली गई, और ये देखते रहा. He could not board the train. वो ट्रेन में बैठ नहीं सका. और जब ट्रेन चली जाती है तो ये प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता है. वहां पे बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, बिल्कुल खाली प्लेटफॉर्म होता है. He says that I had no idea where to spend the night. अभी सोचता है कि ये पता नहीं क्यों मैंने ये ट्रेन नहीं पकड़ा, पर जो भी वजह, अब तो ट्रेन जा चुकी है. Now he is in a state of dilemma, is in a state of confusion where to spend the night. ट्रेन तो चली गई, पूरी रात में प्लेटफॉर्म पे तो नहीं रह सकता हूं, क्योंकि अगर अनिल ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस अगर आ जाती है मुझे कैच करने के लिए, मुझे नैप करने के लिए, तो पुलिस अक्सर कहाँ जाती है किसी भी चोर को पकड़ने के लिए? प्लेटफॉर्म,
आई मीन रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बहुत बड़ी कोई अगर रॉबरी हुई है तो एयरपोर्ट, ये वो सारी जगह है जहां से इंसान अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाता है। तो मैं कहाँ ठहरूं? पूरी रात तो मैं प्लेटफॉर्म पे ठहर नहीं सकता हूँ। अगर पुलिस अगर यहाँ जा मुझे पकड़ने को, मुझे जेल हो जाएगी, मैं पकड़ा जाऊंगा। अब ये कंफ्यूजन में कि अपना पूरा रात में कहाँ गुजारूं। He further says that I had no friends, मेरा इस शहर में कोई दोस्त भी नहीं था। Believing that friends were more trouble than help. इस हरि सिंह का मानना है कि दोस्त बनाना, फ्रेंड्स बनाना, यह आपके लिए हार्मफुल ज्यादा है और बेनिफिशियल कम है। इसका ये फीलिंग है कि दोस्त बनाने से इंसान की परेशानी बढ़ती है, ना कि कम होती है। इसके थॉट्स बिल्कुल जो कॉमन थॉट्स होते हैं इंसान के, दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट द कॉमन मैन थिंक्स। आम इंसान क्या सोचता है कि वो सोशल रहे, दोस्त बनाए, रिलेटिव्स बनाए, फ्रेंड्स बनाए, लेकिन ये इंसान सोचता है कि दोस्त बनाना मुश्किल काम है, और अगर दोस्त बन जाए तो वो दोस्त आपके लिए मुश्किल ज्यादा क्रिएट करते हैं, ट्रबल ज्यादा क्रिएट करते हैं, आपके लिए वो किसी भी तरीके से यूजफुल साबित नहीं होते हैं। तो ये कहता है कि मेरे कोई फ्रेंड वगैरह नहीं थे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और ये कहता है कि मैं स्टेशन के पास जो होटल है वहां पे भी ठहरना नहीं चाहता हूं। कहीं लोग मुझे शक करे कि ये इंसान क्यों आया है। अब आप सोचेंगे कि अगर किसी की ट्रेन छूट जाती है तो ये आप क्रिटिकली थिंक करने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें कि जब कभी किसी की ट्रेन छूट जाती है, या फिर जब किसी को दूसरे शहर में स्टे करना होता है, अगर उस शहर में उसके कोई रिलेटिव नहीं है, इफ यू हैव टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर सिटी और टाउन वेयर द पर्सन हैज नो रिलेटिव, नो फ्रेंड, तो वो कहाँ स्टे करता है? होटल में स्टे करता है। अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप कहाँ स्टे करेंगे? होटल में स्टे करेंगे, या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ स्टे करेंगे, या फ्रेंड के यहाँ स्टे करेंगे। इस शहर में हरि सिंह का ना कोई रिलेटिव है, ना कोई फ्रेंड है, तो एक ही जगह बसता है जहां वो स्टे कर सकता है, वो होटल। होटल भी क्यों नहीं जाना चाहता है? ट्राई टू थिंक, सोचने की कोशिश करें कि वो होटल भी क्यों नहीं जाना चाहता है। होटल तो सेफ जगह है, आसानी से वो वहां छुप सकता है। एक्चुअली इस थिफ को गिल्ट फील हो रहा है। अब धीरे धीरे इसको गिल्ट फील होना स्टार्ट हो गया, इससे एहसास होना स्टार्ट हो रहा है कि आई हैव डन अ क्राइम, मैंने क्राइम किया है। अब व्हाट काइंड ऑफ क्राइम, ये हम आगे पढ़ेंगे। पैसा चोरी करना ये क्राइम, या फिर कोई दूसरी क्राइम, कोई दूसरा गुनाह मैंने किया, ये आगे देखेंगे। सो इसे गिल्ट फील हो रहा है, इसे थोड़ा थोड़ा इसे दोष महसूस होना स्टार्ट हो रहा है। The only person I knew really well was the man I had robbed. कहता है कि एक ही इंसान है जिसे मैं पहचानता हूँ इस शहर में, जिसका नाम अनिल है, और उसके भी घर मैंने डाका डाल दिया है। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब ये स्टेशन छोड़ के बाजार की तरफ, यानी कि मार्केट की तरफ निकल जाता है। In my short career as a thief, I had made a study of man's face. Underline करो इसको। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. कहता है कि इस थेफ्ट के करियर में, चोरी के करियर में, मैंने बहुत सारे जगहों पे डाका डाला है, और जहां जहां भी मैंने डाका डाला है, या जिन जिन लोगों से सुना है, जिन जिन लोगों के घर में चोरी हुई है, उनके चेहरे को मैंने पढ़ने की कोशिश की है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश की है। different people make different kinds of facial expression when they are robbed. अलग अलग तरह के इंसान अलग अलग तरह से अपना चेहरा बनाते हैं, अपने चेहरे से भाव व्यक्त करते हैं, इमोशन शो करते हैं, फीलिंग शो करते हैं कि उनके घर चोरी हो गई है। जैसे एग्जांपल वो देता है कि द ग्रीडी मैन शोड फियर। अगर किसी लालची इंसान के यहाँ अगर चोरी हो गई है तो उसके चेहरे से फियर छलकता है। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को कि द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची इंसान होता है उसके चेहरे से क्या छलकता है? फियर छलकता है, डर छलकता है। अगर किसी लालची इंसान के घर पे चोरी हुई है, चोरी होने के बाद उसके चेहरे से डर छलकता है। द रिच मैन शोड एंगर। जो अमीर लोग होते हैं वो अपने चेहरे से गुस्सा छलकाते हैं, उनके चेहरे से गुस्सा डिस्प्ले होता है, एंगर डिस्प्ले होता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और गरीब लोगों के यहाँ अगर चोरी हो जाती है
तो वो एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और वो कंटेंटेड रहते हैं, वो बहुत ज्यादा इमोशन नहीं शो करते हैं। गरीब लोगों के घर में अगर चोरी हो जाती है तो बहुत ज्यादा न गुस्सा करते हैं, न बहुत ज्यादा वो डर दिखाते हैं, न बहुत ज्यादा अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि चलो ठीक है, ये मेरी किस्मत में नहीं था, तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये 3 डिफरेंट पीपल का उसने अनिल सिंह ने जिक्र किया है यहाँ पे कि ये 3 अलग अलग तरीके के लोग देखे हैं जो चोरी होने के बाद इस तरीके से बिहेव करते हैं। कोई फियर दिखाता है, कोई एंगर दिखाता है, कोई एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, ये चोरी हो गई तो क्या हो, लाइफ यहाँ पे एंड नहीं होता है। But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness. पूरी लाइन को अंडरलाइन करते चलना है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो कहता है कि मुझे पता है कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके घर मैंने चोरी की है, तो उसके चेहरे से, उसके फेस से ना डर छलकेगा, ना एंगर छलकेगा, ना ही एक्सेप्टेंस छलकेगा, उसके डर से सैडनेस छलकेगा। अब इस पे क्वेश्चन बनता है कि वाई हरि सिंह थॉट दैट अनिल वुड फील अ सेंस ऑफ सैडनेस व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट अ थेफ्ट वाज कमिटेड। अनिल सिंह हैड रॉब्ड हिम। अनिल सिंह को ऐसा हरि सिंह हैड रॉब्ड हिम। हरि सिंह को ऐसा क्यों लगता है कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके घर चोरी हुई है तो उसे उदासी महसूस हो, वो सैड हो जाएगा। क्यों ऐसा लगता है? इसका आगे आंसर दिया हुआ है, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पैसे चोरी होने की वजह से उसके चेहरे पे सैडनेस नहीं आएगी। सैडनेस किस वजह से आएगी? क्योंकि किसी ने उसका ट्रस्ट तोड़ा है, किसी ने उसका विश्वास तोड़ा है। ये इसेंस है, ये एसेंस है पूरे इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अब ये सब फीलिंग होती है, इसे फीलिंग, अभी इसे गिल्ट फीलिंग होना स्टार्ट होता है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने एक ऐसे इंसान का विश्वास तोड़ा है जिसने मुझे विश्वास पे ही अपने घर में जगह दी, मुझे फूड दिया, मुझे रहने के लिए, मुझे स्टे करने के लिए जगह दी, मुझे अपने घर की उसने मुझे चाबी दी, उसने मुझे फ्री रोप दी थी, फ्रीडम दी थी कि जब मैं घर से बाहर जा सकूं, जब मैं चाहूं वापस आ सकूं। बट मैंने ये क्या कर दिया, मुझे अनिल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। अब ये पार्क में चला जाता है, मैदान मीन्स पार्क में चला जाता है, बाजार होते हुए पार्क में चला जाता है और वहां पे एक बेंच पे बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, ठंड का मौसम था, इट वॉज अर्ली नवंबर का टाइम था, एंड द लाइट drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. अचानक से धीरे धीरे बारिश तेज होती है और जोर से बारिश होने लगती है। माई शर्ट एंड पजामास स्टक टू माई स्किन। बारिश की वजह से इसके शर्ट और पजामा दोनों इसके स्किन से चिपक गए थे, जैसे बारिश में हो जाता है। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और ठंडी ठंडी हवा इसके फेस को टच करते हुए क्रॉस कर रही थी। I went back to the bazaar and sat down on the shelter of the clock tower. Clock tower समझते हैं क्या होता है? शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग होता है जिसके ऊपर क्लॉक लगा होता है। यहाँ से और भी बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, डायरेक्शन निकलते हैं, उसे क्लॉक टावर कहते हैं। तो ये कह रहा है कि फिर बाजार वापस चला गया और क्लॉक टावर बिल्डिंग के नीचे जाकर के बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, 12 बज रहे थे रात के। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे अचानक से महसूस हुआ कि मेरे पास नोट्स भी है 50 के डिनोमिनेशन में। दे वर डैम्प फ्रॉम देयर एंड। ये नोट्स क्या हो गए थे? डैम्प हो गए थे। डैम्प मतलब गीले हो गए थे बारिश की वजह से। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. Now he is reminiscent. He is actually remembering whom? He is remembering the contributions of Anil to Hari Singh. अनिल का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था हरि सिंह की तरफ? उसे फूड देता था, उसे पढ़ाता था, उसे पैसे देता था बाजार से सामान लाने के लिए। अब ये सारी बातें वो सोच रहा है, इसके दिमाग में सिर्फ अनिल ही अनिल चल रहा है। वो सोचता है कि अगर सुबह में अगर आज मैं जगता तो हो सकता है अनिल मुझे पैसे देता है, फिर ये लो पैसे और जाके सिनेमा देखो। बट नाउ
आई हैड इट ऑल, लेकिन अब वो सारे पैसे तो मेरे पास है और मैं भी अनिल के पास नहीं हूं। और वो रियलाइज करता है कि आज सुबह मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना पाऊंगा और ना मैं बाजार जा पाऊंगा उसके लिए वेजिटेबल या डोमेस्टिक स्टफ लाने के लिए, और आज वो मुझे सेंटेंस भी लिखना नहीं सिखाएगा। यानी क्या महसूस कर रहा है? द एब्सेंस ऑफ अनिल इन हिज लाइफ। अनिल की अनुपस्थिति अपनी जिंदगी में उसे महसूस हो रही है कि काश मैं अनिल के पास होता। ये कंप्लीटली गिल्ट रिडन है। गिल्ट रिडन मतलब इसे फील हो रहा है, सॉरी फील हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। I'd forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and a respected man, was something else. I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. अब ये डिसाइड करता है कि मुझे शहर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। Instead, I should straight away go to अनिल। मुझे अनिल के पास जाना चाहिए था। और ये कहता है कि इस चोरी के एक्साइटमेंट में अनिल का जो मेरे प्रति कंट्रीब्यूशन था, मेरे लाइफ के प्रति जो योगदान था, ये सारी चीजें मैं भूल गया। ठीक है। और कहता है कि होल सेंटेंसेस वो मुझे लिखना सिखाता, वो मुझे लिटरेट बनाता, पढ़ना लिखना सिखाता। और अगर मैं लिटरेट बन जाता, पढ़ना लिखना सीख जाता, तो मैं बहुत पैसे कमा सकता था। फिर वो रियलाइज करता है कि ये चोरी करना तो बहुत आसान बात है, और कहता है कि लेकिन उससे ज्यादा महान काम क्या है? चोरी करना मेरी नजर में बहुत महान काम है, लेकिन जमाने की नजर में महान काम क्या है? एक रेस्पेक्टेड इंसान बनना, एक ऐसा इंसान बनना जिसकी सोसाइटी में रेस्पेक्ट होती है। एक चोर की सोसाइटी में कोई रेस्पेक्ट नहीं होती। एक राइटर जो अनिल है, एक राइटर की बहुत रेस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। अब इसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, इसके लाइफ में बदलाव आने वाला है। देखिए, सो आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब ये वापस अनिल के पास चला जाता है और ये नर्वस फील करता है। मैं अब आपको ये यहां से समरी बताता हूं, उसका पढ़ दूंगा, आप इसकी मीनिंग को समझेंगे। नाउ हरी सिंह गोज स्ट्रेट अवे फीलिंग अ सेंस ऑफ गिल्ट टू अनिल्स हाउस। अनिल के घर पहुंचता है, ये गिल्ट फील करते हुए, दोष महसूस करते हुए अनिल के घर पहुंचता है और गीले नोट को उसने चुपके से टक कर दिया मैट्रेस के नीचे, वहीं पे जहां पे वो रखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग हरि सिंह लेट उठता है और इससे पहले अनिल उठ जाता है और अनिल हरि सिंह के लिए चाय बना के ले जाता है और कहता है ये लो चाय पियो। और अनिल हरि सिंह को एक 50 रुपए की नोट देता है, 50 रुपए का एक नोट देता है कि ये लो 50 रुपए और ये तुम्हारी सैलरी है और अब से मैं तुमको रेगुलरली पे करूंगा, रेगुलर पेमेंट तुम्हें दूंगा, मैं तुमको हर महीने सैलरी दूंगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द नोट्स वर डैम्प, नोट गीले हो गए थे ड्यू टू हेवी रेन। अनिल हरि सिंह को ऐसा फील होता है कि मैं तो पकड़ा गया, आई एम कॉट, अनिल ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन अनिल को यह बेहतर पता था कि उसने ड्राई नोट्स लाए थे, पब्लिकेशन हाउस से उसने सूखे हुए नोट लाए थे। घर के अंदर अगर नोट रखी थी तो ये नोट भींगा कैसे? तो अनिल को ये बात बेहतर पता है कि हरि सिंह ने कल रात चोरी की मेरी नोट की, बट उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, गिल्ट फील हुआ है, इसलिए अनिल हरि सिंह को माफ कर देता है और उसे 50 रुपए का नोट देता है और कहता है कि लो ये 50 रुपए, do whatever you wish to do and from this month onwards I am going to give you regular salary. The tragedy is this कि usually क्या होता है, it's not a tragedy, it's a very different issue altogether कि whenever a master finds his servant robbing him, he straight away calls the police or throws him out of the house. जब कभी भी एक मालिक अपने सर्वेंट को चोरी करते पकड़ता है तो या तो पुलिस को कॉल करता है या फिर उसे डिस्ग्रेस करके, उसे ह्यूमिलिएट करके, बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देता है। लुक एट द पर्सनैलिटी ऑफ, लुक एट द थिंकिंग of Anil. I mean, what a different person he was. He simply forgave Hari Singh. He simply forgave Hari Singh for robbing him. उसे लूटने के लिए उसने उसे माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि अनिल को पता है कि अनिल को ये फील हो गया था कि गिल्ट कॉन्शियसनेस फील हो रही है किसे?
Hari Singh. So under the circumstances, it's good to forgive a person rather than punish him, so that he also gets a chance in his life to transform. वो भी अपनी जिंदगी में उसे भी जिंदगी में एक ऐसा मौका मिलना चाहिए जिसमें वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके. No one comes on this planet, no one comes out of the womb of his or her mother robbing. कोई भी चोरी करते हुए इस दुनिया में नहीं आता है, और ना कोई माँ की कोख से चोर पैदा होता है. The circumstances make a person do so. परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि एक इंसान चोरी करने के लिए या फिर कुछ क्राइम करने के लिए मजबूर हो जाता है. बट एवरी पर्सन डिजर्व्स अ चांस टू ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ. अपनी जिंदगी को में बदलाव लाने के लिए हर इंसान को एक मौका जरूर मिलना चाहिए, और अनिल सिंह गेव दैट वन मौका, वन चांस टू हरि सिंह. और इस तरीके से हरि सिंह की लाइफ बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है. अब वो रेगुलर काम करता है कहाँ? अनिल के यहाँ. और उसने अब ये थेफ्ट का जो काम है, चोरी का काम फाइनली छोड़ दिया है. ये इस पे आपका एंड होता है. अब मैं इसको पढ़ देता हूँ. सो आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. फर्स्ट इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. I opened the door quietly. Then I stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it the notes. I awoke late next morning to find that Anil had already made tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. Discovered means caught. मुझे ऐसा लगा कि मैं पकड़ा गया. जब अनिल ने मुझे 50 रुपए के गिरे नोट दिए तो मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया. I made some money yesterday. He explained. Now you will be paid regularly. अनिल सिंह ने कहा कि मैंने कुछ पैसे कल कमाए हैं और अब तुमको रेगुलर पेमेंट मिलेगी, तुम्हें रेगुलर सैलरी मिलेगी, मंथली सैलरी मिलेगी. माई स्पिरिट्स रोज. माई स्पिरिट्स रोज मीन्स मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया. स्पिरिट मीन्स कॉन्फिडेंस. मेरा अंदर का जो कॉन्फिडेंस था वो जग बढ़ा कि चलो मैं बच गया और मुझे एक मौका मिल रहा है अपनी जिंदगी को सुधारने का. बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट. जब उसने नोट अपने हाथ में लिया तो हरि सिंह को ये फील होता है. फील क्या होता है? उसने देखा कि ये वही नोट है जो कल में चुरा के ले गया था और ये नोट भींगे हुए थे. He knew, but neither. Today we will start writing sentences. हरि सिंह कहता है, अनिल कहता है हरि सिंह से कि आज से हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे. आज से तुम्हारी ट्रेनिंग एजुकेशन की पढ़ाई की स्टार्ट होगी. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. He यहाँ पे कौन है? He यहाँ पे अनिल है. He knew मतलब अनिल knew that Hari Singh had robbed him the previous night. अनिल को पता था कि हरि सिंह ने उसे पिछली रात उसके घर से चोरी की थी. ऐसे क्वेश्चन बनता है कि अनिल को कैसे पता चला, क्योंकि जो नोट अनिल लेकर के आया था बाहर से वो ड्राई थे, सूखे हुए थे, वो क्रिस्पी नोट थे, और जो नोट उसके बेड के अंदर में सुबह में मिला वो भींगे हुए थे. तो घर के अंदर कैसे पानी, मैट्रेस के नीचे रखा हुआ नोट्स कैसे भींग गया? इस तरीके से वो इमेजिन कर लेता है, वो सोच लेता है कि अनिल सिंह ने चोरी की थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. अपीलिंग वे मीन्स अट्रैक्टिव वे. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और मैंने भी स्माइल की अनिल की तरफ देखे, और हम दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे. मुझे हरि सिंह को भी पता चल गया था कि अनिल ने पकड़ लिया, समझ लिया, और अनिल को तो पता चल ही चुका था कि हरि सिंह उसके मैट्रेस के नीचे से कल सारे नोट्स ले गया था. तो दिस वे योर इंटायर चैप्टर स्टोरी एंड्स. ठीक है, अब इस स्टोरी के ऊपर फिर से पढ़े, इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसको अंडरलाइन कर ले, क्वेश्चन आंसर्स बनाए. हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू. मजा आया स्टोरी? पंखा चलाओ. कौन सा चैप्टर बताओ तो?
vibration from the top.